Hello, I'm Shubham Dharamsattu and I'm from Shoka tribe. It's in Johar Valley in Uttarakhand, and I'm on a journey to walk from Kashmir to Kanyakumari all alone and unsupported. So I wanted to experience different things, and the answer to all of it was traveling and travel alone. So in my third year at 2 a.m. I left with my cycle from Ahmedabad, and I thought I'll cycle for 100 kilometers and maybe I'll find my answers. But that 100 kilometers didn't stop, and I kept cycling till Kanyakumari. And I cycled for around 2 months, and that changed everything. So from there it started from my college. So this whole journey, when I started, I wanted to make it more of a story listener base. Like, I believe everybody in the world is a great storyteller, but I think there are very few story listeners. And I wanted to experience that. That's why I'm walking, and I'm going to more of interior villages, interior town areas. This whole journey, I've gave myself a challenge that I won't be taking a hotel. So every day when I go to a new village, I go to the nearest chai place or where the local people are gathering, and I then go there and then I start talking with them. Then I make new friends, and most of the times I get invitations for staying, and if not, then I stay in a temple or churches and everything. So the whole road on my first couple of days was snow, so my shoes were getting wet, and because of the wetness I was getting a lot of blisters. Any day, I think every day I want to give up. My body wants to give up, my mind is like, no, let's keep going on and let's find stories where no one has found yet. 2015, this is India, this is Northeast. So I cycled from the last eastern village in Arunachal called Vakro, where the Himalayas start, and I cycled all the Himalayas till Kashmir. So this journey in 2015 happened, and it was around 6,000 kilometers of Himalayan cycling journey alone. And I call myself a story listener because I believe in India there are so many people and in so many different kind of villages, there's so many cultures, there's so many stories to listen, and I think my job is to go in all these interior villages walking and listen to all these stories and observe and then share it with you guys. नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं शुभम धर्मसत्तू जी के साथ, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर से आते हैं। तो इनकी अचीवमेंट के बारे में, जैसा कि हमने वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दिया है, इन्होंने पैदल वॉक किया है नॉर्थ से साउथ तक, और ये साइकिलर भी रहे हैं और यूथ के लिए एक बहुत बड़े आइकन हैं। और उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में इनका काफ़ी है, और हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन्हें कवर किया था, और इनके बारे में ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन मीडिया में भी सुर्खियों में थे। और हेलो धर्मसत्तू जी, आपका स्वागत है देवभूमि इंडिया फाउंडेशन में, और भारतीय छात्र संसद नई दिल्ली आपका स्वागत करता है। मैं दीपक जंगपांगी अब शुभम धर्मसत्तू जी से उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। शुभम जी। थैंक यू दीपक जी अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। तो पहले तो छोटा इंट्रो मेरा जगह का रहेगा, मैं कहाँ से हूँ। तो मैं एक ट्राइब से हूँ, शौका ट्राइब से, जो कि जोहार वैली से बिलोंग करता है, जो कि उत्तराखंड के बहुत ही एक्सट्रीम एरिया में आता है। उसके बाद मेरा स्कूलिंग हल्द्वानी में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, और फिर मेरा कॉलेज हुआ था गुजरात में, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन की पढ़ाई करी है।
तो कॉलेज से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ था, जहाँ पे मैंने एक तो काफ़ी ट्रैवल करना शुरू किया। मैंने सब लोग जब मोटरसाइकिल ले रहे थे तो मैंने एक साइकिल ले लिया अपने लिए, और वो साइकिल लेके मैं रोज़ अहमदाबाद का 10-20 किलोमीटर का राउंड मारता था अकेले ही। तो वो मेरी एक शुरुआत थी ट्रैवल करने की। और ट्रैवल सिर्फ मेरा घूमने का मकसद नहीं था, पर बाहर जो मतलब हमारे जो कंफर्ट लेवल के बाहर जो परेशानियां होती हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ को, अलग अलग लोगों को, उनको जानने और पहचानने का मेरा मेन मकसद रहता है। तो कॉलेज के टाइम पे भी मैंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट किए थे एनजीओ के साथ जो अलग अलग सोशल मुद्दों पे थे। जैसे कि मेरा जो थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट था वो ये था कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं अहमदाबाद में, एनआईडी, आईएम, आईआईटी, यहाँ पे हर दिन कम से कम 1000-2000 लोगों का खाना फेंका जाता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट खाना खाने नहीं आते हैं, पर मेस में ऑलरेडी खाना बन जाता है। तो ये सारा खाना मैं आसपास के मंदिरों में और ऑर्फनेजेस में बांटता था बच्चों को, अच्छा खाना। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने कॉलेज में शुरू किया। फिर मैंने कॉलेज में ही अपनी कंपनी शुरू की थी जिसमें मैं टूरिज्म में काम किया, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और मैंने देखा है कि टूरिज्म का जितना पॉजिटिव है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लोकल पे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानी है। तो उसी को लेकर मैंने थर्ड ईयर में अपना कंपनी शुरू कर दिया था, जो अभी भी चल रहा है। मतलब काफ़ी उसके में अभी भी एडवेंचर सस्टेनेबल टूर जाता हूँ ऑल ओवर द हिमालयस। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट से मेरे वो कहते हैं मतलब थर्ड में कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म से रिलेटेड है और फिर से है। और फिर मैं अलग एक्सट्रीम तरीकों से और ये पता करता हूँ कि जो कम्युनिटी है, जो अनप्रिविलेज लोग हैं, उनको परेशानी और से कम रिसोर्सेज से सॉल्व किया जाए सस्टेनेबल तरीके से। जी। जैसा कि शुभम जी ने बताया हमें उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में और उनकी स्टार्टिंग के बारे में, और मैं स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है काफ़ी नेगेटिव है। कई अभी हमारी जानकारी में आया है कि मैं न्यू दिल्ली में भी रहता हूँ, तो कई स्टूडेंट्स ने यहाँ सुसाइड कमिट किया है और कई लोगों को सीवियर न्यू दिल्ली में सीवियर स्ट्रेस डायग्नोस हुआ है। तो एज ए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हम ये देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हैं अभी अपनी करियर को लेके। कई सारे हमें मेल्स आते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड इशू के, और कई जो यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ जो डेट टू डेट एक हरेसमेंट खेल रही है, डेट पे डेट्स आ रही हैं उनकी। तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कम कर सकता है, एक अपना एक लाइफ को कैसे डायरेक्शन दे सकता है आपके हिसाब से? पहले तो ये है कि अगर आपका स्कूल या कॉलेज अभी भी बंद है पर आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें भगवान जितनी ताकतें हैं, मतलब आप किसी भी टॉपिक में अगर आपको पढ़ाई करना है, किसी भी टॉपिक की जानकारी चाहिए, तो आप 2 सेकंड के अंदर अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। ये चीज़ें 10-20 साल पहले लोगों ने सोची भी नहीं थी। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो सिर्फ वो आपको कॉलेज या स्कूल नहीं सिखाता, आप खुद भी सीख सकते हैं। पहली चीज़ जो हर एक इंसान को सीखनी चाहिए कि वो खुद में कॉन्फिडेंस लाना और खुद को दूसरों से कंपेयर ना करना। आजकल स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है मेन, कि वो दूसरों से कंपेयर करते हैं कि यार मेरे मार्क्स उससे कम आए हैं, या फिर अरे मेरे इंस्टाग्राम में तो फॉलोअर्स कम हैं, अरे या तो मेरे फोटो में लाइक्स कम आ रहे हैं, नो, अरे या तो उसकी गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, या उसका बॉयफ्रेंड है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कंपैरिजन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, ये कंपैरिजन ही ला रहा है जो हमारे दिमाग में है ना। हम लोग हमेशा कंपेयर कर रहे हैं ना, हर चीज़ के लिए। मार्क्स हो गया है, लाइक्स हो गया, फॉलोवर्स हो गया, बाइक है, कार है, वो कौन से कैफे में खा रहा है। तो ये चीज़ों से आप पहले हट जाइए, जी। आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए। और दूसरा, आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप रोज़ इंजीनियरिंग सीखें सुबह शाम, आप कुछ नया भी सीख सकते हैं उसके अलावा। और आपको ज़िंदगी में तभी मज़ा आएगा सीखने में जब आप कुछ नया सीखेंगे हर दिन। और अगर स्टूडेंट्स को
लगता है कि अगर कॉलेज और उसमें अभी बंद चल रहा है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और आपको जिस टॉपिक में आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, आप खुल के कीजिए। किसी और के लिए मत कीजिए, पर खुद के लिए कीजिए, सीखने के लिए। तब आपको ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा यही मैसेज होगा सारे स्टूडेंट्स से कि आप जी जैसे भी हैं, आप एक स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हैं। आपके स्किल सेट, आपका जो दिमाग है वो दूसरों से अलग है, और आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल। अलग हैं। अगर आप चिड़िया हैं तो आप मछली को देख के नहीं बोल सकते कि मैं तैर क्यों नहीं सकता, या अगर आप शेर हैं तो आप चिड़िया को देख के नहीं बोल सकते मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ। आप, हम सब अलग अलग हैं, हम सबकी ताकतें अलग हैं, हम सबकी कमजोरियाँ अलग हैं। तो कंपैरिजन इज द बिगेस्ट नेगेटिव प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स एंड द यंग पीपल। जी जी। बिल्कुल धर्मसत्तू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपैरिजन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है कि हम लाइफ को हर समय कंपैरिजन देखते हैं, मास एक नंबर सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। और हमने देखा है कि जो न्यू दिल्ली है, एक मेट्रो सिटी है, यहाँ ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, आप एक उत्तराखंड के एक दूर दराज क्षेत्र से भी आते हैं, आप उत्तराखंड में रहे हैं, तो वहां का और मेट्रो सिटीज का सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है। उत्तराखंड में जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे 10 गुना स्ट्रेस लाइफ एक मेट्रो सिटी का स्टूडेंट देखता है। और आपने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया आपने डिस्कवर किया है। और आपको इस डिस्कवरी में क्या लगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या नहीं देखा है, और आखिर दुनिया कितनी बड़ी है। तो आपको डायग्राम पता चलता है कि दुनिया काफी बड़ी है, और छोटे छोटे नंबर सिस्टम से तो काफी बड़ी है। तो इस कंपैरिजन सिस्टम से हमें बाहर निकलना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। तो आपको पूरी इंडिया की डिस्कवरी जब आपने की, जब आप पूरे इंडिया पे पूरी इंडिया आपने वॉक किया, पैदल वॉक किया, तो आपने क्या पाया कि इंडिया क्या है आपके हिसाब से? इंडिया क्या है? सबसे पहले तो मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मतलब मेरे लिए नेचर सबसे ऊपर आता है। और मेरे हिसाब से इंडिया एक, पहला तो एक नेचर है। मतलब इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिमालयन पर्वत है, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे घने जंगल हैं, जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे मतलब अगर आप उसका नेचर नेचर देखें तो वो सबसे ज़्यादा यूनिक है बाकी सारे कंट्रीज से कंपैरिजन पे। यहाँ पे आप -20 डिग्री से लेके भी जगह हैं और +50 वाले भी हैं। तो अगर हम इस कंट्री को देखें तो ये कंट्री सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है। जिस इकोसिस्टम में हम जो इंसान आए हैं वो काफ़ी बाद में आए हैं। और जो इकोसिस्टम है ये बहुत टाइम से है, हमारे से पहले से है, और इसी ने हमको पाला पोसा है। हम अगर रेगिस्तान में रहते हैं तो हमारा भाषा अलग है, खाना अलग है। हम पहाड़ से हैं तो हमारा हम दिखते अलग हैं, हमारा खाना अलग है, बोलचाल अलग है। हम समुद्र से हैं, पर हम इंडियन क्यों हैं? बिकॉज ये इकोसिस्टम की वजह से। ये कोई पहले से कोई किताब लिख के नहीं गया था कि आप सब बनाओगे, पर ये जो इकोसिस्टम है वो हमको जोड़ के रखा है साथ में। तो इंडिया मेरे लिए कोई भी सिर्फ नाम नहीं है, या फिर मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या फिर 150 करोड़ लोग नहीं है। ये एक एनवायरनमेंट है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग 50-60 साल के बाद मर जाएंगे, फिर नया जनरेशन आएगा। पर क्या चीज़ सेम रहेगी? जो इकोसिस्टम है। हम तो आते आते रहेंगे, 100 साल के बाद तो कोई बचेगा भी नहीं जो जी अभी इंसान है। तो इस इकोसिस्टम ही हमारे कंट्री है, और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इंडिया चाहे कितना भी खूबसूरत और रंग बिरंगा और अलग अलग लोगों से भरा हुआ क्यों नहीं है, पर इसका जो इन्वायरमेंट है अभी वो बहुत ख़राब हो चुका है। अभी भी आपके पास फ़ोन है, आप गूगल करिए कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड जगह कौन सी है, तो आपको टॉप 10 में से टॉप 9 इंडिया में दिखेंगी। तो ये जो हम अपने देश के साथ कर रहे हैं, नदियों में कचरे डाल रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। अभी आप पहाड़ों में ही देखेंगे, जैसे मैं हर साल जोहार जाता हूँ, तो मौसम इतना बदल चुका है वहाँ पे। कभी भी बारिश आ जा रही है, कभी भी लैंडस्लाइड आ जा रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम में हम इफेक्ट कर रहे हैं, इसी से जो पहाड़ी एरिया है और जो समुद्री एरिया है, इनको क्या हो रहा है कि
पहले 4-5 साल में एक बार नेचुरल डिजास्टर आता था। याद है सुनामी आया था? जी जी। सुनामी 2-3 साल तक फेमस था। अब क्या हो रहा है कि हम हर साल 8-10 वो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। तो इनका पैटर्न बढ़ चुका है, जिससे इसका मतलब है हमारा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, और ये सिर्फ लास्ट 30-40 ईयर्स में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, नेचर बहुत ज़रूरी है। हम आएंगे जाएंगे, मतलब कंपनीज आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, पर ये एक सेम रहेगा। बिल्कुल। और अभी इस शुरुआती लॉकडाउन में आपका अनुभव कैसा रहा कि आप आपने लॉकडाउन में कई फॉरेनर्स की हेल्प की और आपको उनके साथ मिलके आपने उनके साथ रहे और उनके साथ टाइम एक्सपेंड किया, उनके एक्सपीरियंस आपने गैदर किए होंगे। और तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन में हमारी देश की छवि कैसी रही और जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा था तो आपने कैसे उन चैलेंजेस को किया और कई सारे लोगों की आपने मदद की। तो आपको उस टाइम उस सिचुएशन में आपके मार्च के बाद कैसे आप उस सिचुएशन में आए। तो ये जो कहानी शुरू होती है मेरी पूरे रेस्क्यू मिशन की, ये होती है मार्च 20 को। और इसी टाइम पे लगभग ऐसा मैसेज आ गया था कि कुछ टाइम पे लॉकडाउन शुरू होने वाला है। तब मैं था जैसलमेर में, और मैं टूरिज्म में हूँ काफ़ी सालों से, और मुझे पता है कि टूरिज्म इज़ वन ऑफ द टॉप अर्निंग सेगमेंट फॉर इंडिया। तो टूरिस्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत एक टॉप सेक्टर है इंडिया में, मतलब करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने देखा जैसलमेर में ये सडनली कोरोना वाला न्यूज़ बहुत फैलने लगा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आने लगे, तो सडनली मैंने देखा कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे अपना बैग लेके और सामान लेके। तब मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। जब मैंने उनसे रोक के पूछा तो वो बोल रहे कि हमें लोकल लोग अपने होटलों से बाहर फेंक दे रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगने लग गया था कि हर फॉरेनर को कोरोना है। मतलब ये मतलब कुछ कुछ होते हैं ना जो व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज आते हैं, तो किसी ने कर दिया कि सारे फॉरेनर्स को कोरोना है, इनसे भागो। तो इनको फेंका जा रहा था, धक्के मारे जा रहे थे, इनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। तब मुझे बड़ा अजीब लगा, और फिर मैंने जितने लोग हो सके मैंने इकट्ठा किया, इनको मैं दिल्ली ले आया, क्योंकि दिल्ली में इनकी एम्बेसी इनकी हेल्प कर सकती है। जिस दिन मैं दिल्ली लाया उस दिन लॉकडाउन का डे 1 था, थिंक जनता कर्फ्यू था संडे को। तो उस दिन ट्रेन पहुंची, वही जो जैसलमेर से उत्तराखंड को कनेक्ट करती है। तो वो दिल्ली पहुंची सुबह 10 बजे। और फिर मैं कितने होटलों में कॉल किया कि प्लीज़ इनको कुछ दिन रहने को दो जब तक कि आपकी फ़्लाइट नहीं पकड़ते। और किसी भी होटल ने, चाहे वो कितना बड़ा छोटा क्यों ना हो, किसी ने भी हाँ नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं, फॉरेनर्स हैं, हम नहीं रखेंगे। ओके। तो फिर मैंने बहुत कॉल करके एक हॉस्टल को खुलवाया वसंत विहार पे, और वहाँ पे मैं उनको ले गया। वहाँ पे और भी फॉरेनर्स फंसे हुए थे। अब टोटल 30-40 फॉरेनर्स हो गए सेम डे पे ही। तब जब मुझे लगा कि यार इतने छोटे एरिया में दिल्ली के अगर इतने फॉरेनर्स फंसे हैं जिनको खाना पीना रहना नहीं है, तो पूरे इंडिया में कितने फंसे होंगे। और अगर चलो कोरोना कभी भी खत्म होगा या नहीं होगा, पर ये जो इनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है ना, ये कहानियां सदियों तक रहेंगी। एक कहानी ऐसी चीज है जो जिंदगी पर आपके साथ रहती है और जिंदगी के बाद भी रहती है। हम तो आएंगे और जाएंगे, पर जो कहानियां हमारे देश के बारे में बोली जाएंगी वो सदा सदा रहेंगी। बिल्कुल इंडिया का आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है इस। हाँ, तो वो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा, और इसके लिए मैंने एक कैंपेन चलाया अपने सोशल मीडिया में कि ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये फॉरेनर हेल्पलाइन है। जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में फंसे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, रहना नहीं मिल रहा, या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मुझे कॉल करो। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं इनकी हेल्प कैसे करूँगा, पर मुझे था कि कोई नहीं करा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारे कॉल आने लगे लोगों के कि हम यहाँ फंसे हैं, कोई बस स्टैंड में सो रहा है, कोई पुल के नीचे सो रहा है, मतलब इंटरनेशनल। तो फिर मैंने अपने दोस्तों के कांटेक्ट निकाले अलग अलग सिटीज से, जो मैंने इंडिया ट्रैवल करके दोस्त बनाए थे। उनके मैंने घर खुलवाए, किसी का गेस्ट हाउस था वो खुलवाया, वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया। फिर लॉकडाउन के बीच में जब शुरू में एकदम पूरा बंद था, उस टाइम पे मैंने डिजास्टर मैनेज को कांटेक्ट किया, डिजास्टर मैनेजमेंट अपनी गाड़ियों में को दी। उस गाड़ियों से मैंने अलग अलग जगह से लोगों को पिकअप किया, ऑल ओवर इंडिया से। मतलब एम्बेसी के मिलके और डिजास्टर मैनेज से मिलके बसें भर भर के लोग आए दिल्ली, सबको मैंने ट्रांसपोर्ट करवाया। फिर उसके बाद अलग अलग रहने की जगह दी।
फिर एम्बेसी से कांटेक्ट करके इनको अभी तक मतलब आज तक इनका इवैक्यूएशन चल रहा है। अभी कल ही 2 अफ्रीकन लोग का इवैक्यूएशन हुआ फाइनली। ओके। तो अभी भी ये चल रहा है, मतलब उतना लोग बचे नहीं है, पर अभी भी काफ़ी लोग बचे हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो ये मेरा मिशन रहा। जी। और हम इस बात पे भी आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इंडिया का आपने बहुत ही रिस्पेक्ट रखा। और ऐसा अब लोग ये नहीं सोच पाते कि अगर हम लोगों फॉरेनर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे जो और जो लाखों लाखों एनआरआईज और कंट्रीज में है उनके साथ कैसा बिहेव होगा। शायद हम ये भूल जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारा सिस्टम इस चीज में फेल हुआ। अचानक 22 को मार्च में जनता कर्फ्यू लागू किया और लोगों ने उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली माना। और आपने जो लोगों की हेल्प की, फॉरेन में हेल्प की, एक बहुत ही गुडविल मैसेज जाता है ऑल ऑल ऑफ द वर्ल्ड। एक गुडविल जाती है हमारी इंडिया की जो आपने की। हमारी कम्युनिटी में भी इसका बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया कि एक एक इंसान हमारी कम्युनिटी में ऐसा है जो एक बड़े डायग्राम में सोचता है, ना अपने स्टेट और अपनी कंट्री से भी एक बड़े डायग्राम में सोचता है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और बस हम एक छोटे से प्रश्न के साथ इसे हम क्लोज करेंगे। आप बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने करियर को लेके आज आज के इस टाइम पे बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है और वो सोच नहीं पा रहे कि ये डिग्री कंप्लीट होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तो आपका क्या मैसेज है? आपने अपनी अपनी लाइफ की डिग्री भी कंप्लीट किया, आपने अपने पैशन को भी फॉलो किया, और आप अपनी लाइफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को और हमारे पूरे न्यू दिल्ली की पार्लियामेंट को आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा सबसे यही एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब आप कोई बीज लेते हैं छोटा सा पेड़ उगाने के लिए, जब आप उसको ज़मीन में डाल देते हैं तो आप उसमें पानी रोज डालते हैं ना, खाद पानी रोज डालते हैं, तो पौधा तो अगले दिन नहीं आता जी। ना, उसका फल अगले दिन आता, उसको बहुत टाइम लगता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो या पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर हो या कोई भी इंसान हो, आपका जो सपना है वो उस बीज की तरह है। और वो जो ज़मीन है उसमें आप जब डालते हो उस अपने सपने को, तो उसमें आपको रोजाना पानी डालना है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे 2 दिन के बाद अरे पौधा क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा ही जो आपका सपना है आप उसको डालिए, पहले उसको एक स्ट्रॉन्ग सपना बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग सीड बनाइए, बिकॉज सीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं ऑरेंज का सीड डाल दिया और आपको बाद में एप्पल चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको सीड को पहले सोच समझ के डालना पड़ेगा। अपना टाइम लीजिए, अपनी खूबियाँ देखें, अपनी कमजोरियाँ देखें, उसके हिसाब से वो सीड को डेवलप करें और उसको बोएं। और उसके बाद उसमें लगातार जितना आपको हार्ड वर्क है, जितना आपका पैशन है, सब रोज डालते रहिए और फल की चिंता मत करिए। 99% क्यों लाइफ में फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग फल की चिंता इतने जल्दी कर देते हैं कि 2 हफ्ते के बाद लगता है यार स्टार्टअप शुरू किया था कुछ हो नहीं रहा है, चलो छोड़ देते हैं। अरे पढ़ाई 2 दिन की थी, अब मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया। फुटबॉल खेलने गया था 1 महीने में, अभी मैं रोनाल्डो नहीं बन पाया तो मैं छोड़ रहा हूँ। जिम गया था मैं 3 महीने में, अभी तक मेरा एब्स में, तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, जो आप अपने सपने से बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, तो मत थकिए, बिकॉज वो एक पेड़ की तरह है जिसको सालों लगते हैं। तो बस अपना सीख ढूंढिए, अपनी कमजोरियाँ अपनी ताकतों को मिलाकर, और उसको बोएं और उसको जितना हो सके उसमें मदद जितना हो सके उसमें अपना पोषण भरिए, अपनी मेहनत करिए और फल की चिंता ना करें, बस लगे रहें। चलिए, थैंक यू धर्म सत्तू जी। मैं भारतीय छात्र संसद नई दिल्ली और भारतीय छात्र संसद पुणे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और देवभूमि फाउंडेशन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कोशिश करेगा कि आपको नई दिल्ली कार्यक्रम में जरूर बुलाया जा सके। ये कोविड-19 की सिचुएशन जैसे ही सही होती है, हम आपको जरूर हमारे कार्यक्रम में बुलाएंगे और इसके लिए हम आपको जरूर सम्मानित करेंगे, जो आपने देश के लिए किया। और एक अच्छा मैसेज, एक फॉरेनर्स को एक मैसेज दिया कि इंडिया एक रियलिटी में महान है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। भारत असल में एक महान देश है।
चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धर्म सत्तू जी, थैंक यू सो मच।